You can start now. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. I hope I'm audible to everyone. Yes, you are. All right. Yes, ma'am. My name is Sama Nadeem and I'm absolutely delighted to be your host for today's session of Opening Minds Mental Health Awareness series brought to you by Teen Therapy Wellness and sponsored by Wellbeing Hub, We Protect You and Amna Ansari with over 20 plus diverse, highly professional speakers, psychologists, therapists, educators, and advocates and change makers, all coming together to talk about the real issues affecting mental health today, from trauma-informed care to adolescent challenges, neurodivergence, addiction recovery, digital burnout, emotional intelligence, and much more. Nothing is off the table. Our aim is to bring mental health into the light and make psychoeducation accessible, inclusive, and practical. Teen Therapy Wellness was founded in 2019 by clinical psychologist Afra Arshid. She is a is a mental health platform committed to supporting the emotional and psychological well-being of adolescents and young adults through therapy, awareness, campaigns, and community engagement. This platform has helped countless individuals navigate anxiety, trauma, grief, and an identity challenge over the years. Teen Therapy Wellness has delivered impactful workshops in schools, universities, and corporate sectors, aiming to break the stigma around mental health and equip individuals with tools for emotional resilience. Our CEO at the heart of Teen Therapy Wellness is Ms. Afra Arshad, a clinical and counseling psychologist with over 7 years of experience. She specializes in trauma-informed therapy, emotional regulation, CBT, REBT, and psychoanalysis. Afra has conducted hundreds of one-on-one sessions with teens and young adults, and her commitment to community healing is evident in many platforms she has trained, taught, and collaborated with. It is now my honor to introduce our esteemed guest, esteemed speaker for today, Ms. Laiba Sadaf. We are honored to welcome Ms. Laiba Sadaf on our Teen Therapy Wellness Opening Minds Mental Health Awareness Series, Episode 12. She's with over 3 years of experience in psychotherapy. Laiba brings a compassionate and informed perspective on youth mental health, stigma, and suicide prevention. Her commitment to mental health and her expertise in navigating emotional and generational challenges make her, make her an invaluable voice in our session today, which is Silence is Loud, Suicide Prevention and Shame-Based Cultures. Without further ado, I would like to hand over the floor to Ms. Laiba Sadaf. Over to you, ma'am. Thank you so much, Sama, for the beautiful introduction of me and Afra as well. I hope I am properly audible to everyone. Give a thumbs up. Yes, ma'am, you're audible. And thank you so much. Thank you so much. So let's start. And first of all, I would like to thank Afra for this beautiful series. I have had the privilege of attending a lot of sessions in between because 3 p.m. is kind of time people are at work. I was at work, so बहुत सारी चीजें बीच में से skip होगी, but the ones I attended were worth attending. Beautiful awareness seminars, a lot of topic, a lot of diversity of speakers over here. So I would like to thank her. And at the first place, and then we will move toward my introduction first. My name is Laiba Sadaf, as Sama already told. I am a clinical psychologist in training, pursuing my master's in clinical psychology from University of Sahiwal. In the past few years, I have had the privilege of collaborating with a lot of organizations, actively working in psychotherapy, mental health education, and youth empowerment. And through my 70 plus webinars, seminars, trainings, and workshops, I have reached an audience of more than 10,000 individuals that included a diversity of people, students, parents,
teachers, professionals, to create awareness on topics like suicide prevention, career counseling, self-discovery, neuroplasticity, stress, time, procrastination, anger, burnout management, mental health awareness, and resilience. And clinically, I have been working from past 3 years in mental health settings, and I have been honored with 15 plus awards, including Presidential Award, Gold Medal from Amal Academy, and multiple recognitions for leadership, innovation, and clinical work. Today, I'm here to represent Teen Therapy Wellness specifically, and I would like to thank Afra and the team for inviting me on this amazing topic that is need of hour. And जितना भी awareness इसके बारे में फैलाया जाए, इसके बारे में बात की जाए कम है. The silence is loud. Suicide prevention in shame-based culture. What is your understanding of the topic? First of all, it will be an interactive session. My chat box is open. We are going to communicate. We are going to talk about a lot of things. It is more of a discussion. All right. So the chat is open. You can always write your insights, your perspective toward that point we are going to discuss. So, what is the first word that comes in your mind when you hear the word suicide? Depression, self-destruction, depression, fed up with life, ending your life, killing yourself, last option left, stress, death. How family often promoted when it comes to assault cases, yes. To end your life because of hopelessness, anything that creates self-harm, killing yourself, freedom, hopelessness. Yes, you all are right. And I also added a word, like a variety of words over here, a cloud of words that included all these words. So, yes, you all are right, all the perspective that you are telling. So, but again, in our culture, suicide is unreported. We all know what suicide is. We all know. I've been working with a lot of clients with self-harm, with the thoughts, with depression specifically, with major depressive disorder, with thoughts of killing themselves, called suicidal ideation. So, have you heard someone saying these words के बस मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, या ये थॉट के आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, या हमने बहुत कॉमनली एक वर्ड, एक लाइन जो हम अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में सुनते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नींद सो जाऊं. People who are stressed from their work, from their family, from anything of the world. हर इंसान 2025 में stressed है, लाइफ की बहुत सारी चीजों से जगल कर रहा है. तो हमने ये बात बहुत कॉमनली सुनी है कि पीपल वांट कि वो सो जाए लंबे टाइम के लिए. दे वांट रिलीफ फ्रॉम समथिंग जो कि उनके अंदर है और जो किसी को नजर नहीं आता. सामने से इफ देयर इज अ वुंड ओवर हियर, वो दिखेगा. वो इंसान डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अच्छा गिव मी समथिंग टू रिलीफ इट, ट्यूब लगाएंगे, दवाई खाएंगे, कुछ भी करेंगे. पीपल विल कम, किसी के का टांग फ्रैक्चर हो जाती है, बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, द होल फैमिली मेंबर्स, कोई रिलेटिव्स हैं, दे कम ओवर एंड दे आस्क कि अच्छा जी तीमारदारी करने आए हैं या फिर हाल पूछने आए हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, और क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, वी आर हियर टू हेल्प यू. बट ऑन समथिंग जो कि साइकोलॉजिकल नेचर का है, वो वुंड्स जो नजर नहीं आते हैं, वो चीजें जो हमारे जहन में ही चलती रहती हैं, और शायद हम इतनी करेज इकट्ठी नहीं कर पाते हैं उन चीजों को एक्सप्लेन करने की, उनको बताने की, किसी को शेयर करने की, वो करेज ही नहीं कभी इकट्ठी कर पाते हैं. तो दैट इज द रीजन कि हम साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सफर करते हैं और हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जब हम हेल्प नहीं लेते एट वेरी स्टार्ट, अर्ली इंटरवेंशन पे. टीन थेरेपी वेलनेस का भी समा ने भी जैसे बताया कि गोल है कि हम साइको एजुकेशन क्रिएट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करें कि जब हमें स्टार्ट पे कोई साइंस एंड सिम्टम्स फील होना शुरू हुए हैं खुद में या किसी इंसान में, तो हम उसे राइट पर्सन के पास, फोकल पर्सन के पास रेफर कर सके, उसको इसके बारे में गाइड कर सके, और अगर हमें पता होगा इसके बारे में तो फिर ही हम ये काम कर सकते हैं. सुसाइड इज अंडर रिपोर्टेड. आपको क्या लगता है क्यों अंडर रिपोर्टेड है? क्यों जो है लोग सुसाइड के बारे में बात नहीं करते हैं?
क्यों जो है अगर फॉर एग्जांपल किसी की सुसाइडल डेथ हो जाती है, अपने आसपास देखें या फिर इवन ऑन सोशल मीडिया एज वेल, डिजिटल वर्ल्ड एज वेल, सुसाइड को छुपाया जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उस मेंटल हेल्थ सफरिंग को एक्नॉलेज नहीं किया जाता बाय देयर फैमिलीज एज वेल। हमने अभी डिजिटल, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ओवरऑल, अभी रिसेंटली बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे सुसाइड के, साइकोलॉजिकल वेलबींग जिन लोगों की बहुत ज्यादा सफर करी थी एंड दे डाइड बाय दिस, एंड फैमिली जो है वो वही उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आई वांट टू डिस्कस स्पेसिफिकली। आज हमने अपने टॉपिक का नाम कल्चरल बेस्ड इसलिए रखा है ताकि हम वो बातें कर सके जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली होती है। तो हमारा कल्चर जो है वो साइलेंस को प्रमोट करता है, वो कहता है कि भाई इसके बारे में बात नहीं करते। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक ऑफ द साइकोलॉजिकल नेचर कि भाई आपको नफ्सियाती दर्द हो रहा है, तो यू आर डूइंग रॉन्ग। So I really, when I teach students psychology के specifically, I say to them, हम ये कहते तो हैं कि अच्छा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाओ, हम कहते हैं कि अच्छा बात करें इसके बारे में, फैमिलीज को गाइड करते हैं। आप सब लोग एक काम करें, टू द स्टूडेंट्स आई रियली से कि आप सबने आज घर जाना है और घर जाके कहना है कि मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ, मेरे जो है जिस्म में बिल्कुल ताकत महसूस नहीं हो रही है, मेरा दिल नहीं लगता किसी भी काम में। तो आप खुद लोग, आप सब लोग खुद बताएं, लेट्स कम इनटू कमेंट सेक्शन कि अगर आप ये बात अपनी फैमिली में, अपने घर में कहेंगे तो व्हाट योर फैमिली मेंबर्स विल रिप्लाई, व्हाट दे वुड से। टैबू है, जनाजा पढ़ने से मना कर देते हैं। यू आर वेरी राइट नेहा। शेम एंड टैबू, बदनामी का डर होता है, रिलीजियस एंड कल्चरल कॉजेस होते हैं। सो जाओ थोड़ी देर, स्लैप। वेरी ट्रू, आई वांटेड टू लिसन टू दिस। काम से बचने का बहाना है, स्टिग्माटाइज अल्लाह डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस, सब ठीक है, शायद थक गई हो, रेस्ट कर लो। वेरी कंपैशनेट फैमिली, क्राई, आई अप्रिशिएट दैट। बकवास ना करो, सॉरी। यस, स्टॉप यूजिंग मोबाइल। यस, मोबाइल हर चीज की जड़ है, नमाज पढ़ो। यस, वेरी राइट जवेरिया। फ्रेश होकर आ जाओ, अच्छा फील करोगी, सब कुछ इस मोबाइल का किया गया है। यस, यू ऑल आर वेरी राइट। यानी हम अगर बात करें, नजर लग गई है। यस, दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, जान के करिए, कुछ नहीं हुआ। यस, ये सारी बातें हैं। ये देखो, हमने कितनी एक सिंपल सी बात की कि आई एम फीलिंग सैड, यानी सैड फील करना भी हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है। तो अगर आप ये कहोगे कि अच्छा आई एम फीलिंग सुसाइडल, तो फिर क्या होगा? अगर हम इतनी छोटी सी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इस कल्चर में, इस जनरेशन में हमें दिमाग में ये बात डाली ही नहीं गई, हमारी पेरेंटिंग में ये चीज ऐड ही नहीं है कि आप ग्रीव कर सकते हो। हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है कि अच्छा बच्चा वो होता है जो हर बात मानता है माँ बाप की, और जो कोई बात नहीं मान रहा कि कहीं पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, वो गंदा बच्चा है। जो अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा, वो गंदा बच्चा है। हम इतना ज्यादा हमने शेम बेस्ड ये कल्चर बना दिया है कि हम किसी चीज को, अच्छी चीज को प्रमोट ही नहीं करते हैं। बच्चों में इमोशनल अवेयरनेस ही नहीं है। उनको पता है हैप्पी इज एन इमोशन दैट इज एक्सेप्टेड। आप हैप्पी हो, आप सबकी बातें मान रहे हो, आप सबको बड़ों का अदब कर रहे हो, आप गुड चाइल्ड हो, गुड चाइल्ड, पेरेंट वाला गुड चाइल्ड हो, ठीक है, तो फिर आप अच्छे बच्चे हो। वरना यू आर नॉट डूइंग गुड इन लाइफ। सही है। तो हम अपने बच्चों को भी जब ये चीज नहीं सिखाएंगे, तो कभी जिंदगी में जब उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जब वो फेलियर को फेस करेंगे, जब उनको कोई जॉब इंटरव्यू से कॉल नहीं आएगी या वहां पे बुला के उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, तो दे वुड फील बैड अबाउट इट एंड दे वुड नेवर नो कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और ऐसी सिचुएशन में दे वुड से कि अच्छा, वो जो साइकोलॉजिकल पेन है वो अपने अंदर रखते रहेंगे एंड दे कम टू अ पॉइंट जो कि सुसाइडल या सेल्फ हार्म का हो सकता है। सो हमारा कल्चर ऐसा है जो साइलेंस को प्रमोट करता है। अगर आप बीमार हो, कुछ भी हो, आप देखिए अगर किसी को नफ्सियाती बीमारी है, आज 2025 में भी आई हैव सीन पीपल कि वो प्रमोट नहीं करते हैं, वो बताते नहीं है फैमिली मेंबर्स को। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके पेरेंट्स कभी बताते हैं कि इसको कोई ये सफर कर रहा है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फला किस्म का कोई प्रॉब्लम इसको चल रहा है, नहीं बताते। हमारा कल्चर साइलेंस को प्रमोट करता है कि नहीं भाई, ये बात नहीं बतानी। इससे क्या हो जाएगा,
हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग हमें जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें जो है, ये शेम बेस्ड कल्चर जो है हमारा वो प्रमोट करता है। और इज्जत पे बात आ जाएगी, और ये कि इसके तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, इस अगर फॉर एग्जांपल फॉर द मेल एज वेल फॉर द फीमेल एज वेल ये चीज कही जाती है कि जो है रिश्ता नहीं होगा आगे जाके, आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे, फैमिली वाले आपके बारे में बातें बनाएंगे। रिलीजियस एंड लीगल इम्प्लीकेशंस इन पाकिस्तान, ये जब मैंने इसको मजीद स्टडी किया तो आई गॉट टू नो कि क्रिमिनलाइज किया गया है इन पाकिस्तान। अगर कोई शख्स सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो अंडर सेक्शन 325 और पाकिस्तान पैनल कोड उन लोगों को डिस्करेज किया जाता है, और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, या उनको अरेस्ट किया जाता है जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो दिस कल्चर discourage people from seeking emergency help due to fear of arrest and due to fear of legal action as well. और religious perspective क्या है हमारा कि सुसाइड करना हराम है, और आप सुसाइड करोगे अल्लाह तो आपको भी माफ नहीं करेगा, आप गुनाहगार हो। तो ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें हैं जिसकी वजह से सुसाइड जो है वो अंडर रिपोर्टेड है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। So let's start with an activity on a scale of 1 to 10. How comfortable are you opening up about your mental health to someone in your family or community? आपने अपने बारे में अपनी ये जो mental health suffering है, you are feeling something, इसके बारे में आपने बात करना है। तो you are 1 is not at all, you are not comfortable. 10 is very comfortable. आप अपने किसी friend को, किसी family member को, parents को, टीचर को, किसी इंसान को बता पाते हो कि मैं साइकोलॉजिकली क्या फील कर रहा हूँ या मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है? 2 1 8 3 2 to my best friend it's 10. Okay, yes, 9 9 1 4 3 2 2 3 8 4 6 4 2 1 2. Okay, most of the people over here are below 5. They are not comfortable talking to someone about their mental health issues, and it is alarming. And you people are those educated, aware, self-aware people of our society, youth of our society. तो अगर हम इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं तो एक अनअवेयर इंसान जो कि जानता भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, जो जानता भी नहीं है कि वो जख्म जो नजर नहीं आता उसका मतलब क्या होता है, जिसको पता ही नहीं है कि एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होती है, अगर वो किसी चीज से सफर कर रहा है वो कैसे इसके बारे में बात कर सकता? डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, बिकॉज पीपल लैक इमोशनल इंटेलिजेंस टू। सो आप ये देखें कि हम वो लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इस कल्चर को अंडरस्टैंड करें तो ये कल्चर हमें क्या बताता है? ये बात उठाता है हमारी सेल्फ वर्थ। ठीक है कि दूसरे लोग आपको जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोगों की बात आपकी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फला मामी, चाची, ताई, उसको ये कहना चाहिए कि ये जो लड़की है ना ये बड़ी अच्छी है और ये सबकी बात मानती है, ये हमेशा खुश रहती है, सबको सर्व करती है, शी इज वेरी काइंड। लेकिन वो लड़की अंदर से कैसा फील करती है, नोबडी केयर अबाउट इट। सेम फॉर द मेल्स एज वेल। आपको अपना एक ऑरा, आपको अपना एक पर्सोना हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और बजाय इसके कि वो आपके बारे में बात करे, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करे, उसको छुपाया जाता है, स्ट्रगल्स को छुपाया जाता है। अगर कोई डिप्रेशन की दवाई खाता है, कोई एंजियोलिटिक लेता है, तो वो छुपाई बात जाती है, नहीं बताई जाती। फैमिली ऑनर, रेपुटेशन बीच में लाई जाती है। एक इंसान की वेलबींग को बिल्कुल वैल्यू नहीं किया जाता। खानदान की इज्जत जो है वो मैटर करती है कि लोग कुछ ना कहे हमारी फैमिली को, हम बड़ी बात फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल नहीं होते। और जो है इमोशनल इश्यूज, उनको भी कुछ नहीं समझा जाता है। इंस्टेड जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि मोबाइल छोड़ दो, नमाज पढ़ो, ड्रामे कर रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की जाती हैं। ये नहीं कहा जाता कि आप सही कह रहे हैं और यू आर फीलिंग समथिंग। सो कुछ यहाँ मैंने बातें लिखी हैं, कुछ मजीद हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज आज हमने अपना कल्चर जो है उसको ब्रेक डाउन करना है और अंडरस्टैंड करना है कि लोग इस सोसाइटी में क्या क्या जो है मैक्सिमम और मिनिमम कह सकते हैं टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये आप देखें कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद वेरी माइनर थिंग्स, आई एम फीलिंग सैड। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस
huge 1 और 10 का डिफरेंस है between I'm feeling sad and I'm feeling suicidal. तो अगर ये भी अलाउड नहीं है तो फिर आगे क्या अलाउ होगा? लोग क्या कहेंगे? देयर आर सर्टेन कॉमन मैसेजेस और सेंटेंसेस जो कि इस कल्चर में हम देखते हैं. लोग क्या कहेंगे? ये डिप्रेशन नहीं है, आई थिंक इट गॉट कट. ओके, ये डिप्रेशन नहीं है, इसको सिर्फ तवज्जो चाहिए. हमारे जमाने में तो ऐसे मसाइल नहीं होते थे. तुम्हारा भाई तो डॉक्टर है, तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम क्यों नहीं बन सकते? कंपैरिजन. ठीक है, ये मसले तो सिर्फ पागलों को होते हैं. जो नॉर्मल इंसान है या हमारी फैमिली का इंसान है उसको ये मसला नहीं हो सकता. ठीक है, इतनी छोटी सी बात पे रोना कैसे? तो डिप्रेशन में इंसान उसके कंट्रोल में तो थोड़ी ना होता है कि वो रो रहा है, वो रोए ना रोए. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यस इरम. अच्छा, उसके बाद ये बात सिर्फ हमारे घर में रहनी चाहिए, ये कल्चर जो है. और थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज्जत का मसला है. लोग क्या कहेंगे? स्टिल आई सफर फ्रॉम दिस इज वेल के अच्छा एक क्लाइंट आता है एंड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग फॉर एग्जांपल R&R की स्केड्यूल हुई होती है. तो अ पर्सन कम टू मी एंड सेड कि आप प्लीज मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो फला पर्सन जो बाहर बैठा हुआ है उससे आगे पीछे कर सकती है. मैं अभी छुप कर अंदर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे यहाँ पर ना देखे. वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो मेरे अम्मी अब्बू को जानता है, मेरी फैमिली को जानता है. तो ये इज्जत का मसला हमारी बन जाएगा. लोग क्या सोचेंगे कि हमें थेरेपिस्ट के पास आना पड़ रहा है. तो नमाज पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तुम्हें सब कुछ तो मिला हुआ है, तुम्हारे पास सब कुछ है. अच्छा खाना तुम्हें देते हैं, अच्छे कपड़े तुम्हें मिलते हैं, फिर भी तुम उदास रहती हो, फिर भी तुम्हें किसी किस्म के मसाइल हैं. तो ये चीजें हैं जो कॉमन सेंटेंसेस दैट केम इनटू माय माइंड. और अब हम देखते हैं कि आपके माइंड में क्या आया. आई नोटिस दैट पहले दे विल लेबल यू एंड देन से समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ. और वो आपको ट्रॉमाटाइज करने के लिए कहते हैं. कंपैशनेट वर्ड्स नहीं होते. तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रही हो, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए. ओके ओके, आई एम गेटिंग इट. अंसा ऐसा अब हम ये कह सकते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट है उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता. एक कोई जो है हेपेटोलॉजिस्ट है उसको कभी लिवर डिसफंक्शन नहीं हो सकता. जस्ट बिकॉज जो है वो एक कंसल्टेंट है और एक डॉक्टर है. या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उसको कभी हड्डी का मसला नहीं हो सकता, उसकी कभी डिस्क स्लिप नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज वो ऑर्थोपेडिक है. तो वाई और किस तरह से हम पहले एक इंसान है और उसके बाद कुछ भी हम बनते हैं. और लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. These things are in upper middle class and in middle lower poor class, which is majority of Pakistan, are blind about mental health and majority suffer a lot. Express क्या करना है? Even there is no awareness and understanding exist के mental health भी होती है. You are very right ज़ियाउर रहमान. जब हम गवर्नमेंट सेटिंग में काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब पब्लिक आती है उनको बिल्कुल किसी चीज का नहीं होता. फैमिली तब लेकर आती है जब मेडिसिन वाले, कार्डियो वाले स्टमक की वो दवाई खा खा के थक चुके होते हैं और उनकी पर्चियों पे लिखा हुआ होता है मल्टीपल टाइम्स के रेफर टू साइकेट्री. बट दे थिंक के भाई मुझे तो नफ्सियाती मसला है, मुझे तो मैदे का मसला है, मुझे तो दिल का मसला है. वो तो आते नहीं है. ये आपकी बात बिल्कुल सही है. साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तुम क्या पागल हो? यस, कॉन्फ्लिक्ट. साइकोलॉजी पढ़ के पागल हो गई हो. यस, ऐसा भी होता है. और आप एक डिसफंक्शनल, इमोशनली इमेच्योर फैमिली में जब आप एक राइट पर्सपेक्टिव बताते हो ना, आप बताते हो कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, वहां पर आपको गलत कहा जाता है. बिकॉज वो जो डिसफंक्शनल फैमिली है वो डिसफंक्शनल बिलीफ्स को राइट समझती है. दे आर फेमिलियर, दे आर राइट इन देयर पर्सपेक्टिव. और जो आप असली पर्सपेक्टिव इतने सालों आप पढ़ते हो, आप पर्सपेक्टिव अपना बिल्ड करते हो, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है. दम करा लो. यस, ओके. थेरेपिस्ट, तुम तो खुद थेरेपिस्ट हो, तुम इतनी सेंसिटिव हो. मैंने एक बहुत मजे की बात एक जगह पढ़ी कि जो एक रियल थेरेपिस्ट है ना, व्हेन अ क्लाइंट लीव दैट पर्सनस रूम, तो उस इंसान की आंखें नम होती हैं. हम एक इंसान है, हमें भी इमोशनल जो है इश्यूज का सामना करना पड़ता है. और हम वी आर नॉट मेड ऑफ मेटल और समथिंग. हम इंसान है. Nutritionists are not fatty. Okay. Yes, it happens. Let's move forward and talk about suicide in Pakistan. I want to tell you few numbers.
आई एम फीलिंग वेरी बैड एंड दिल से एक दिल को कुछ होता है, परेशानी होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे आसपास। और ये सब इस वजह से है बिकॉज किसी को पता ही नहीं है अर्ली इंटरवेंशन का, या किस तरह से ये चीज प्रोग्नोसिस इसका किस तरह से होता है, ये डेवलपमेंट कैसे होती है, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है डिप्रेशन का, या फिर हम इसको स्टार्ट ये लेजीनेस से ही होता है, स्टार्ट ये सिर्फ सैडनेस से ही होता है, स्टार्ट ये सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट से ही होता है, लेकिन पहुंच ये ऐसे पॉइंट पे जाता है जो कि जिसको हम we cannot undo if a person lost his or her life. So 2006 to 2017 WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगेन ये रिपोर्टेड केसेस हैं, 19,331 सुसाइड रिपोर्ट हुई। हर WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक एवरी 40 सेकेंड 1% डाइज बाय सुसाइड इन द वर्ल्ड। 40 सेकेंड्स, इमेजिन हम कितनी देर से बात करें, हाउ मेनी सुसाइड कुड हैपन इन दिस टाइम पीरियड। 73% ऑफ सुसाइड हैपन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जैसे अभी जिया ने बात की थी कि लो क्लास में, मिडिल क्लास में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेंटल हेल्थ का। 73% सुसाइड वहां पर होती है, और एक सुसाइडल अटेम्प्ट के पीछे देयर आर 20 to 30 जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स। एक इंसान समझे एक एज पे पहुंच जाता है, 20 to 30 टाइम्स उस पॉइंट पे पहुंच के वो स्टेप बैक करता है, पॉइंट पे पहुंच के वो स्टेप बैक करता है, 30th टाइम जाके वो एक एक्चुअल अटेम्प्ट होती है। बट सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स। अगर हम इसको प्रमोट करें, लोगों को इसके बारे में पता हो, तो हम उस एक इंसान जो हमारे आसपास से चला गया और एक ऐसी चीज जिसको हम अनडू या खत्म नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रिवर्स अरेज नहीं कर सकते, हम उस इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं। और वो काम आज हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं एटलीस्ट अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं, अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई वुड शेयर सम रिसोर्सेज एज वेल विद यू कि कुछ चीजें, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। आप सबके पास व्हाट्सएप है, आप सबके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, take screenshot of few slides and share it on your WhatsApp today. And ये क्या होगा, इससे वो लोग एटलीस्ट जिसने कभी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचा होगा, प्रोबेबली वो सफर कर रहा हो, वो शायद आप ही के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे कि अच्छा आई फेल्ट समथिंग लाइक दिस, सही है, एवर इन लाइफ, या अभी मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ। तो यू आर द पर्सन, दो यू 60 प्लस पीपल जो आज यहाँ पर हैं, यू आर द पीपल जो कि उनको राइट प्लेस के बारे में गाइड करेंगे कि देयर इज साइकियाट्रिस्ट हु कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड देयर इज साइकोलॉजिस्ट जिसको आप सीख कर सकते हैं, देयर आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो इस चीज में आपकी मदद कर सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल है। पाकिस्तान में बहुत सारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। आप देखिए मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर होंगे वो 15 से 30 की एज ग्रुप के अराउंड होंगे, आई थिंक सो, राइट? गिव अ थम्स अप। मोस्टली पीपल जो है वो एडोलेसेंट्स या यंग एडल्ट्स जो है वो इस टाइम सुन रहे हैं। दीज आर हाई रिस्क ग्रुप। हम वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ना है, लिखना है, मार्केट इतनी ज्यादा टफ है पढ़ाई को लेकर, सही है, ग्रेड्स को लेकर, जीपीए को लेकर, नंबर्स को लेकर। ये मैट्रिक के भी एग्जाम्स हुए हैं, उसका रिजल्ट आया है। तो इससे पहले मैं एक पढ़ रही थी, पिछले साल का एक रिपोर्ट हुआ वाकया था इस्लामाबाद का कि मैट्रिक में नंबर कम आए फलां कजन से, इस वजह से उस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। सो एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स आर वेरी हाई रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड देन अदर पीपल। और उसकी रीजन हमारे आसपास हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये हमारी गलती है, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, ये हमारी गलती है। हर चीज में शेम और ब्लेम और गिल्ट हमारे जहन में डाला जाता है। वो वुमेन जो कि ऐसे घरों में रह रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, गाली तो बहुत छोटी सी बात है, मारपीट हो रही है, और उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अगर उनके लिए उनका मेंटोर कौन है, उनके लिए सबसे अच्छा इंसान उनकी जिंदगी में कौन है जिनको अच्छा मशवरा दे सकता है, उस औरत की माँ है, उसकी बहन है, उसका बाप है, उसका भाई। ऐसे ही है ना, अगर वो अपने ससुराल में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, सो आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, तो वो जाएगी अपने मैके में अपने फैमिली मेंबर से कंसल्ट करेगी, बट दे वुड से उसकी माँ उसको हमेशा ये कहेगी कि बेटा खामोश हो जाओ, कोई बात नहीं, आदमी ऐसे ही होते हैं।
कोई बात नहीं, हमने भी सारी जिंदगी गुजारा किया, तुम भी गुजारा कर लो, कोई बात नहीं, तुम चुप कर जाओ। वो जब जब वो गुस्से में हो तब तुम चुप कर जाया करो। अगेन ये इमोशनली इमेच्योर फैमिली की निशानी है, डिसफंक्शनल फैमिली की निशानी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो आइसोलेशन को फेस करती है, वायलेंस को फेस करती है। एक ये भी मैंने पाकिस्तान का ही मैंने वाकया, प्रोबेबली वो लाहौर का था, मैंने सुना कि ट्रांसजेंडर जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट की और उसकी वजह ये थी कि उसको चोट लगी, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ, वो जैसे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, ही वाज डूइंग दैट, और उसको चोट लगी, वो हॉस्पिटल गया, तो उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कह रही हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल ने देखा नहीं, किसी डॉक्टर ने उसको अटेंड नहीं किया जस्ट बिकॉज वो ट्रांसजेंडर है। वेयर वी आर स्टैंडिंग एज अ सोसाइटी, उसको किसी ने अटेंड नहीं किया, ही वाज ब्लीडिंग, और जब वो वहां से बाहर निकला, वहां पुलिस वाला कोई खड़ा था और उसने उसको रिपोर्ट किया, उसको बताया कि अच्छा मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया हूँ और किसी ने मेरी पर्ची नहीं पकड़ी, किसी डॉक्टर ने मुझे देखा नहीं, और उस वहां पे जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने उसको डंडे से मारा। दैट ट्रांसजेंडर अटेम्प्टेड सुसाइड। और where we are standing as a society, it is heartbreaking, it's shaking to the core. वो लोग जो एडिक्शन को, ट्रॉमा को सर्वाइव करते हैं वो हाई रिस्क पे हैं। वो स्टूडेंट जो एग्जामिक प्रेशर, इसके बारे में हमने बात की, उसको फेस करते हैं, वो भी हाई रिस्क पे हैं। तो ये कुछ ऐसे खास ग्रुप हैं पाकिस्तान में जो कि हाई रिस्क पे हैं। व्हाट यू कैन डू इन दिस मोमेंट, कैन आई आस्क फॉर दीज पीपल स्पेसिफिकली, ये जो हमने अभी भी बात की इन लोगों के बारे में, इन हाई रिस्क पॉपुलेशन के बारे में, आप क्या कर सकते हैं? यू आर अ यंग एडल्ट, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? आप और कुछ नहीं कर सकते, बी काइंड टू देम। सही है, अगर कोई आपसे अपनी बात करता है तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखें, अपने पेट में रखें, अपने तक रखें, बात सुन लें। और अक्सर बहुत से लोगों को सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, उनको पता है उनकी फैमिली में क्या मसले चल रहे हैं, उनको पता है उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको पता है उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल है, उनको पैसे नहीं उनसे कमाए जा रहे हैं, उनको पता है उनके नंबर नहीं आ रहे हैं, उनको वो सब चीजें पता है। दे जस्ट नीड एन ईयर टू लिसन, यू जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन बीइंग। आपको कोई थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। ऑन द ग्राउंड लेवल आप अपने आसपास के लोगों को सिर्फ सुन ले तो शायद उनकी परेशानी किसी हद तक कम हो सकती है। So moving forward, I want to ask you, what are the myths that revolve around suicide in Pakistani culture? सुसाइड, अब स्पेसिफिकली पहले मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे तो बड़ी सारी चीजें थी, हमने काफी सारे कमेंट्स ऊपर डिस्कस किए। तो अब आप मुझे बताएंगे, आपने कभी सुना हो कि किसी ने खुदकुशी कर ली है, या किसी कोई खुदकुशी के बारे में सोच रहा है, या उसकी कोशिश कर रहा है, या उसने कभी अटेम्प्ट की है और वो बच गया है, तो इसके बारे में आपने अपने आसपास क्या सुना है, अपनी अम्मी अब्बा, फैमिली मेंबर, रिलेटिव से, कि वो किस तरह से इस बात को डिफाइन करते हैं, या वो क्या कहते हैं इसके बारे में? घर में जरूर एक डिस्कशन होती है, गली में, मोहल्ले में, हमारे टाउन में, हमारे शहर में कोई वाकया हुआ हो तो हम उसके बारे में जो है घर में जरूर डिस्कस करते हैं। ये सामना अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। टू आंसर योर क्वेश्चन कि हमारे यहाँ क्या रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है जब हम सुनते हैं किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड कर लिया है, यहाँ दो कंडीशंस आ रही हैं। एक, सुसाइड अटेम्प्ट आ रहा है, जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है द फर्स्ट थिंग एज अ सोसाइटी पीपल से कि जी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ये इसका, इसमें हिम्मत ही नहीं है अपनी जान लेने की, लेकिन अटेंशन लेने के लिए इसने ये अटेम्प्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली अ वेरी बिटर स्टेटमेंट दैट वी हियर। दूसरा, खुदा ना खासा कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, उसको अ लॉट ऑफ टाइम्स इसमें जिन सवार हो गया था, जिन ने जान ले ली, ठीक है, आपके बहुत इस तरह के कॉन्सेप्ट्स सामने आ जाते हैं, ठीक है। और जब जान ले ही लेते हैं मतलब वेरी सैडली अनफॉर्चुनेटली, तो फिर देयर इज अ लॉट ऑफ रिग्रेट अराउंड पीपल कि अच्छा काश हम सुन लेते, काश हम सुन लेते, काश हम देख लेते, काश हम कंसिडर कर लेते। तो काश से तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वेरी सैडली हमारे यहाँ बहुत अनरियलिस्टिक एंड वेरी जजमेंटल माइंडसेट है जब सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड की बात आती है।
ट्रू आमना, वेरी ट्रू, आपने सारी बातें बिल्कुल सही की। एंड सेम हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे विक्टिम ब्लेमिंग, उसी इंसान को ब्लेम किया जाता है कि तुम ही गलत हो। और माय फैमिली, वन फैमिली मेंबर डाइड, दे सेड कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी शादी करा दो। यस यस, ये बहुत जो है कॉमन इशू है व्हेन आई सी पीपल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो लोग साइकियाट्री डिपार्टमेंट में आते हैं, अगर कोई यंग फीमेल है, मैंने बताया ना एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, तो वो लड़कियां जिसने 10 पढ़ी या 8 पढ़ी और उसको बोला कि भाई तुम्हारी शादी करने लगे फलां कजन से, फलां रिश्तेदार से, फलां मामू के बेटे से, या इवन बहुत बड़ी उधेड़ उम्र के आदमी से, तो अब उस बच्ची के पास, जिसको पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ क्या होती है, जिसको पता ही नहीं है कि अवेयरनेस क्या होती है, जिसको पता ही नहीं है कि अपनी जिंदगी में डिसीजन कैसे लेते हैं, जिसको पता ही नहीं है इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरा भी कोई राइट है या मेरे भी कोई गोल्स है, एस्पिरेशंस है, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता उस इमोशनल पेन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, वो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के साथ आते हैं। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स कुड रिलेट टू इट। बहुत ज्यादा केसेस हैं और वो मिडिल टू लोअर क्लास के केसेस हैं, और फिर बाय द एंड क्या होता है, वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जाते हैं। बहुत बुरा दिया जाता है, फैमिली को सफर करना पड़ता है, कोई साथ ही नहीं देता उस फैमिली का। यस, इवन जनाजा पढ़ने से लोग मना कर देते हैं, कहते हैं इनके घर में जो है फलां बंदे ने खुदकुशी की है, और उस फैमिली से ताल्लुक तोड़ देते हैं। एक तो बंदा उनकी फैमिली का चला गया है, रिश्तेदार सारे उनके घर जाना बंद कर देते हैं। वो टाइम जहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, काइंडनेस की जरूरत है, शायद कोई इंसान आ जाए, उनकी बात सुन ले, उनका रोना सुन ले, उनके कंधे पे हाथ रख दे, उनके लिए कोई खाना बना दे, कुछ कर दे। मैंने ये खुद देखा है कि वो फैमिली जो है सारे वो कहते हैं जी एज अ फैमिली जिरगे का फैसला है कि जी अब से इनके घर कोई नहीं जाएगा। Don't know what are the ways to add there as a person in our society threatening her family about suicide if they do not get her married with her loved one। ये भी केस हमारी फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज का देखा जाता है। हाँ, फैमिली फॉर ग्रांटेड लेती है, वो कहती है कि ऐसी कर रहे हैं, ड्रामे कर रही है, इसने कोई नहीं अपनी जान लेनी। Why people don't tell that person who died committed suicide? Yes, इसके बारे में राजा हम बात कर चुके हैं कि अगर कुछ इस तरह सा हो भी जाता है तो वो डिफरेंट रीजंस की वजह से फैमिली उस बात को छुपा लेती है। इवन अगर वो हॉस्पिटल लेकर आए ना, मैंने हॉस्पिटल में देखा है बहुत सारे लोग, अगर कई दफा कोई पेस्टिसाइड होता है, कोई खाद, कोई गंदम की गोलियां होती हैं, डिफरेंट तरह का कोई भी सब्सटेंस होता है, वो इनटेक कर लेते हैं। जब उनको इमरजेंसी में लाया जाता है और उनकी फैमिली को बताया जाता है कि अच्छा इट इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट, अच्छा हम पुलिस को इन्वॉल्व करने लगे या हम इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, तो दे से कि नहीं ये तो घर में लड़ाई हो गई थी, कोई बात नहीं है, इसने गलती से खा ली है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। So these are the myths that revolve around suicide and I want to talk about it कि सबसे पहले यहाँ पे साइड पे मिथ्स है और यहाँ पे फैक्ट है। टॉकिंग अबाउट सुसाइड इनकरेज इट, इसके बारे में बात ही मत करो तो ये नहीं होगी, सही है। हालांकि फैक्ट क्या है कि वी नीड टू टॉक अबाउट इट एंड ये चीज रिस्क को रिड्यूस करती है। अगर हम किसी एक बंदे को ये पूछ लेते हैं कि अच्छा, और ऐसा कहा जाता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशन को कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, फॉर यू एज वेल कि आपने क्वेश्चन पूछना है। ये चीज यूजुअली जो लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे होते हैं, ये उनको हक्का बक्का कर देती है कि इसको कैसे पता चला कि मेरे ज़हन में ये चल रहा है। तो ये एक उनको पॉइंट मिलता है कि अच्छा इस बंदे को मेरे बारे में पता चला है, यानी ये कहीं ना कहीं मुझे डीपली ऑब्जर्व करता है, शायद ये मेरी मदद कर सकता है। वो इंसान मरना नहीं चाह रहा होता, उसके पास कोई लास्ट ऑप्शन और बचता ही नहीं है, उसको कोई और टेक्निक, कोई और तरीका उससे कोप करने का आता ही नहीं है। अच्छा, सुसाइड इज अ वेस्टर्न प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ वेस्टर्न प्रॉब्लम। मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया कि पाकिस्तान में कितने लोग सुसाइड से उनकी डेथ होती है। ओनली पीपल विद मेंटल इलनेस डाई बाय सुसाइड। सुसाइड्स यूजुअली इंपल्सिव होती हैं, और कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हमारी लाइफ का, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई भी स्ट्रेसर लाइफ का उसको ट्रिगर कर सकता है, उसकी वजह से सुसाइड हो सकती है। सिर्फ जिन लोगों को कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है उनको नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल रियल जो है एग्जांपल बताऊंगी। हॉस्पिटल में मैंने उनको देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भाई ने इस वजह से घर में वो जो गंदम में गोलियां रखते हैं, वो गोलियां इस वक्त खा ली,
और क्यों, बहन भाई की आपस में लड़ाई हुई और बहन ने उसको पानी का ग्लास नहीं दिया और वो कह रहा था मैं बाहर से काम करके आया हूँ, मुझे पानी दो। वो उससे किसी बात पे, जो भी बहन भाई की आपस में बात हो गई, और उसने एज एन इम्पल्सिव एक्ट किया, कोई मेरी बात नहीं सुनता, और उसने वो गोलियां खा ली। ही सर्वाइव्ड, वो बच गया। बट रियलिटी है कि पाकिस्तानी सोसाइटी है, पीपल हु टॉक अबाउट सुसाइड आर जस्ट अटेंशन सीकिंग। हमने कमेंट सेक्शन में भी देखा 70 to 80% लोग वार्निंग साइंस दिखाते हैं। ये हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 weeks बिफोर सुसाइडल अटेम्प्ट वो इस तरह के कुछ साइन एंड सिम्टम, कुछ वार्निंग साइन हमें दिख रहे होते हैं कि ये बंदा सुसाइड करने वाला है, तो ये अटेंशन सीकिंग नहीं है। सेल्फ हार्म इज अगेन अटेंशन सीकिंग। ये आपने देखा है कुछ लोग जो यहाँ पे अगेन एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स यहाँ पे अपने आप कट करते हैं। आप अगर उनके बाजू देखोगे, फॉर पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्हाट वी यूजुअली डू इज कि उनको कहते हैं शो योर आर्म्स, ठीक है, लेग्स एज वेल। वो ऐसी जगह वो हाइड करते हैं, फिर ऐसी जगह पे कट लगाते हैं जो कि दूसरे नॉर्मली हम कम्युनिकेशन में या हम किससे मिले तो उसको छुपा सके अंडर देयर स्लीव्स। सो कुछ लोग अपने आप को कट कर रहे होते हैं। वो क्यों कट कर रहे होते हैं? खुशी से कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल पेन है, साइकोलॉजिकल सफरिंग है। असल में एक वूंड होगा ना, वो नजर आएगा कि अच्छा यहाँ पे इस इंसान के पूरा बना हुआ है, जख्म बना हुआ है, इस जख्म को टच नहीं करना, सही है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वूंड है उसको घर का हर बंदा टच करता है। अगर एक इंसान से कभी जिंदगी में गलती होगी है, उसको बार बार आके उसको पोक करेंगे। अच्छा, आई गिव एन एग्जांपल, यहाँ पर मेरे एक वूंड है, ठीक है, आई गो टू डरमैट और मैंने उसको बोला यहाँ पे जख्म है भाई, इसकी दवाई दो। वो क्या करेगा? वो दवाई मुझे देगा, लगाने के लिए भी दवाई देगा, मुझे खाने के लिए भी, और मैं दवाई खा भी रही हूँ, लगा भी रही हूँ, लेकिन मेरा ये जख्म ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मैं इसको बार बार आके पिंच करती हूँ। मेरी फैमिली में अम्मी आगे इसको पिंच करती है, अब्बू आगे इसको पिंच करते हैं, भाई आगे पिंच करता है, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई इस वूंड को टच करता है। क्या मेरा वूंड कभी ठीक हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुझे इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और शायद मुझे राइट पर्सन से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं। मुझे उन सब लोगों से अपनी बाउंड्री बिल्ड करनी पड़ेगी कि भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, यू कैन नॉट कम टू मी एंड टच मी, पोक मी और पिंच दिस, सही है। तो ये सुसाइड या सेल्फ हार्म इज अटेंशन सीकिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशनल पेन है जो वो निकालने की बंदा कोशिश करता है। अब वार्निंग साइंस कौन से हैं जिनको हमें देखना है? डिफरेंट टाइप के वार्निंग साइंस है। वर्बल है, बिहेवियरल है, रिस्क टेकिंग है, फिजिकल है, इमोशनल है। इन सारी चीजों को हमें देखना है अपने आसपास के लोगों में, क्या वो इस तरह की साइन एंड सिम्टम शो कर रहे हैं। आपने अक्सर लोगों से अपने आसपास, अब आपने थम्स अप देना है, बताना है कि वर्बल साइंस में क्या कभी ये सुना है कि मैं सब पे बोझ हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो सबको सुकून आ जाएगा? ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम अपनी फैमिली में सुनते हैं, अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं। मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी मुझे, मैं अब इस वाली जो सिचुएशन आ गई है ना, मैं इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये सारी बातें हम बहुत कॉमनली अपने आसपास सुनते हैं। ये वर्बल साइंस हैं कि वो बंदा पहली बात तो डिप्रेस्ड है, सैड है, वो किसी चीज से सफर कर रहा है, वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, ये वर्बल साइन है। अच्छा, बिहेवियरल साइन, वो लोग जो सुसाइड के बारे में सोच रहे होते हैं, व्हाट दे यूजुअली डू इज, जो उनके पास कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गोल्ड है, बाइक है, गाड़ी है, इसके पेपर्स, वो देंगे। किसी इंसान को गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, जो उनके पास चीजें हैं वो गिव अवे करने की कोशिश करेंगे। वो वो चाहते हैं कि वो अपनी सब चीजें, अपने सब काम खत्म करके जाएं। जिन लोगों से उन्होंने कभी बात नहीं की है, वो उनसे माफी मांगने की, उनसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक वी डू बाय द एंड ऑफ द ईयर। वी पुट अ स्टेटस कि अच्छा किसी के साथ मैंने गलत किया है तो भाई मुझे माफ कर दे, ऐसे वगैरह वगैरह, और हम अगले साल में इंटर हो रहे हैं, लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट ईयर। किसी भी इंसान की मैं कोई गलत बात दिल में नहीं रखना चाहता और कोई मेरे बारे में ना रखे। सो पीपल ये बिहेवियरल साइन दिखाते हैं कि वो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें छुपा कर या जिस भी तरह से उसको गिव अवे कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, दो सिचुएशंस हैं, या तो कोई इंसान जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है वो बिल्कुल खामोश, बहुत परेशानी से गुजर रहा था, उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया,
बिल्कुल फ्लैट हो गया, एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन काम हो गया, और ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट आया उसमें, और उसने कोई कंप्लेन करना, बार बार रोना पीटना, बात करना किसी चीज के बारे में, अपने दोस्तों को बताना, उनसे बात करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया इन द पाकिस्तानी कल्चर स्किप ढाबा फॉर अ पर्सन जो कि दोस्त है, एक लड़का है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, तो वो डेली शाम को 5 मिनट 10 मिनट अपने दोस्तों के साथ ढाबे पे जाके बैठेगा, किसी भी जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे, मस्जिद के बाहर कहीं पे भी, इन द मिडल एंड लोअर क्लास में इसकी बात कर रही हूँ, कहीं पर अपने दोस्तों से एक इंटरेक्शन, एक कम्युनिटी मीटिंग करेगा, उसको स्किप करना शुरू कर देगा। व्हाट्सएप पे किसी के जो स्टेटस लगाता था उसने एकदम से स्टेटस लगाने बंद कर दिए, ये कुछ भी उसने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। आप सबने वो एक इंसान अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में लाजमी देखा होगा जो कि हमेशा 8 10 2 3 नेगेटिव सैड डिप्रेसिंग स्टेटस अपलोड करता। वो कुछ ना कुछ तो अंदर सोच रहा है ना, जानबूझकर, वो हम कहते हैं ना जानबूझ के ड्रामे करता है, टेंशन सीकिंग करता है। आप सबने लाजिम है कि वो एक इंसान जरूर अपने ज़हन में सोचे, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है जो हमेशा सैड स्टेटस अपलोड करता है। यू हैव टू मैसेज हिम और हर टुडे saying and asking what happened to you, are you suffering from something, ज़हन में कुछ चल रहा है, कोई परेशानी है, you can share and it will remain between you and me. ट्रस्ट मी, वो कुछ ना कुछ जरूर आपको बताएगा। कीप इट टू योरसेल्फ, सिर्फ सुन ले और उसको कहे मैं तुम्हारे साथ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क टेकिंग, कोई ऐसी पेस्टिसाइड खरीदेगा या रूफ टॉप जाके देखेगा कि कौन से वाले से हम जो है किसकी हाइट क्या है, इस तरह से वो अननोन बिल्डिंग्स पे आपको नजर आएगा। फॉर द पेस्टिसाइड एज वेल, ये जो आपको पता है कि गंदुम में रखने की गोलियां होती है, ये इस टाइप की कोई जो गोलियां होती हैं, वो आईडी कार्ड देखकर देते हैं। वो फीमेल्स को नहीं देते, वो लड़कों को नहीं देते, वो यंग एडल्ट्स को नहीं देते, टीनेजर्स को नहीं देते, वो देखकर देते हैं क्योंकि लोग जो है इससे भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और मेन स्पेसिफिकली उनके पास ज्यादा एक्सपोजर होता है टू बाय दिस देन फीमेल्स। फिजिकल एंड इमोशनल साइंस आर कि उसकी स्लीप में एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, एपेटाइट में एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, हेडेक में या ग्रेड्स में पड़ रहा है तो फिर तो ये वो चीजें जो फैमिली मेंबर अगेन होगा तो फिर वही चीजें साइन एंड सिम्टम देख सकता है। और जो है मोर देन 1 साइन जो ऊपर की मैंने चीजें बताई वो 2 हफ्ते पहले अटेम्प्ट से नजर आता है। अच्छा, मैंने आपको एक रियल एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि देयर वाज अ फ्रेंड जिसने सुसाइड अटेम्प्ट की, वो बच गया फॉर सम रीजन, जिस भी तरह से वो बच गया, हॉस्पिटलाइज था, उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिम, और उसने जाते उसको डांटना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि भाई कुछ चल रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आई एम ऑलवेज देयर, हम हंसते इकट्ठे हैं, काम इकट्ठे करते हैं, रोते इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे करते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत दफा बताया। वो कहता कहाँ, उसने चार्ट निकाली कि अच्छा ये देखो, कहाँ तुमने कहा मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। तो उसने कहा मैंने तुम्हें हाय लिख कर भेजा, तुमने मुझे उसका 10 घंटे जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें लिखा कि मुझे किसी चीज के मुझे कुछ बात करनी है, तो उस मैसेज का 2 दिन तक जवाब नहीं आया हुआ था। वो कहता मैं थोड़ा बिजी था यहाँ पे, मुझे क्या पता इस मैसेज का मतलब ये है कि तुम सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले हो। तो उसने कहा कि तुम इसके आगे मेरी बात सुनते तो फिर मैं तुम्हें बताता ना। तो यूजुअली हम अपने आसपास के लोग हम ऊपर से ना ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नोटिफिकेशन बार में देख लेते हैं कि अच्छा इस बंदे ने आपको मैसेज किया है, आपको पता ही हमेशा होता धोता रहता है, भाई मुझे अपने बहुत काम है, और हम उसको रिप्लाई नहीं करते, जानबूझकर उसको इग्नोर कर देते। प्रोबेबली वो आपको हाय हेलो, आप उसकी बात सुनते, आप उसको जवाब देते तो शायद वो आपको बताता कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा हूँ। तो लोगों को क्या चीज बैरियर्स हैं, हेल्प सीख नहीं करने देती, शेम, गिल्ट, रिलीजियस फियर, हम ऐसी बहुत सी बातें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को पता चल जाएगा, और ऐसा होता है अगर कोई हमें दोस्त अपनी बात बता देते हैं तो हम कहते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके लाजमी बता देते हैं। ठीक है, उसको बता देते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर में, अपने किसी और फ्रेंड को लाजमी बता सकते हैं। अफोर्डेबल सर्विसेज नहीं है मेंटल हेल्थ जो है इश्यूज को मैनेज करने के लिए, इसकी वजह से भी लोग हेल्प सीख नहीं करते। फियर ऑफ सोशल जजमेंट है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा बैरियर है जो हमें हेल्प सीख करने से पीछे रखता है। अब हम एक्शन प्लान की तरफ आते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, कोपिंग की तरफ आते हैं कि हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। I made it very simple, 6-step safety checklist. What is this checklist? It is ask,
listen, remove, stay, call, follow up. You can take a screenshot of this. Screenshot और आप इसको कैप्चर कर सकते हैं. Honestly, I forget when someone tell me their secret automatically. Okay. क्या अटेंडेंस होगी? You can ask Sama for this. हमारे वालिदैन तो ले आते हैं लेकिन घर में किसी की रसाई नहीं होती. नेक भी हो जाते हैं. हाँ, हो सकता है. अच्छा, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं. यस अजमत, हो सकता है कि वो अपनी गुड सेल्फ लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि अच्छा मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी है, मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी को कोई गलत बात ना करूं. यस, ऐसा हो रहा होता है. आई थिंक स्लाइड शेयर कर देंगे, ये अपलोड हो जाएंगी ऑन यूट्यूब. अफरा कैन टेल बेटर अबाउट इट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट 6 स्टेप सेफ्टी चेकलिस्ट. पूछे अपने आसपास के लोग, वो बंदा, आज आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट स्क्रॉल करनी है. सबके कॉन्टेक्ट में 10, 15, 20, 25 डिपेंड करता है इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इतने लोग होंगे. ठीक है, 15, 20, 25 लोग सबके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे. आपने स्क्रॉल करना है, आपने देखना है और देखना है कि कौन बंदा किस टाइप का है. आपको पता होगा, आपने सबके स्टेटस हम देखते हैं, हमें पता होता है ये बंदा किस तरह का फील कर रहा है. कभी डाउन फील कर रहा होता है, कोई बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, कोई अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा होता है, कोई नेगेटिव चीजें शेयर कर रहा होता है. तो स्क्रूटनाइज दैट पर्सन. कोई 1-2 बंदे आपको जरूर मिलेंगे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में. आज सिर्फ उनको मैसेज करना है, उनका हालचाल पूछना है और फिर 1-2 दिन बाद फॉलो अप रखना है उनके साथ. एंड आस्क वे. अगर आपको लगता है कि कोई बहुत नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करता है या वो कभी नेगेटिव अपनी जिंदगी में रफ फेज से गुजरा है, किसी ब्रेकअप से गुजरा है, किसी डाइवोर्स से गुजरा है, उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है, तो प्लीज उनके ऊपर चेकअप ऑन करें, उनको मैसेज करें, उनसे बात करें और आस्क देम डायरेक्टली, आर यू थिंकिंग अबाउट हार्मिंग योरसेल्फ? It start with when we ask clients as well. तो we ask it like के आप जिंदगी कैसी लगती है. फिर मरने को दिल करता है, ऐसा दिल कहता है मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, वो कहते हैं यस नो या वो आपको बताते हैं. देन फिर आता है ऐसा दिल करता है अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, कभी कोशिश की है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, तो आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड? फिर ये आता है. तो आस्क अवे, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में, किसी रफ डाउन फेज के बारे में बताते हैं, वैलिडेट करना है, सुनना है, कंपैशनेट होना है, बताना है कि आई एम ग्लैड यू टोल्ड मी. ये बहुत ब्रेव स्टेप है. बताना है कि ये बहुत मुश्किल होता है अपने दिल की बात और ये वाली बात किसी को भी बताना, तो तुमने ये बताई है तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ उसके लिए और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दुनिया में कोई पैदा हो गया हम कुछ नहीं कर सकते, कोई मर गया हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बीच की दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको मिलकर हल कर सकते हैं. वैलिडेट दिस टू द पर्सन. जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, उसमें अपने अपने टर्म्स, अपनी लैंग्वेज, अपने इलाके, अपने कल्चर के मुताबिक आप उस इंसान को वैलिडेट करें. नंबर 3, रिमूव ऑल द मीन्स. अगर आप उस इंसान के दोस्त हैं, जानने वाले, जाहिर है आपको को अगर अप्रोच कर रहा है तो आपको जरूर जानने वाला इंसान होगा. आपने जो भी मीन्स हो सकते हैं जिससे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, उनको आपने रिमूव करना है soon as possible. उन सब चीजों को रिमूव कर देना है. नंबर 4, स्टे विद देम. फॉर द पीपल हु आर सुसाइडल, एक्टिवली सुसाइडल, उनकी फैमिलीज को कहा जाता है कि आपने उनके साथ इवन 24/7 उनके ऊपर सुपरविजन रखनी है, इवन इन द वॉशरूम एज वेल. ये अकेले वॉशरूम में नहीं जाएगी. 5, अब ऐसा नहीं है कि आपने उनकी बात सुन ली है, अच्छा ठीक है तो बस सही हो गया सब कुछ, नहीं. आपने थोड़ी देर के लिए उनको वैलिडेट कर दिया है. फिर से when they will be alone, रात को अकेले लेटेंगे, फिर से थॉट्स आएंगे, फिर से वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो कॉल और टेक हेल्प. आप किसी हेल्पलाइन पे हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं. और ये एक और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मस्जिद का इमाम है, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में रोल वो प्ले कर सकता है, मुझे नहीं लगता हम जितनी मर्जी सीरीज जो है वो बना लें, वो उन लोगों तक, राइट पॉपुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी. आई हैव सीन पीपल जो कि आंखें बंद करके मस्जिद के इमाम पे, मौलवी साहब पे यकीन करते हैं कि मौलवी साहब ने ये कह दिया तो मौलवी साहब बिल्कुल ठीक है. तो देयर शुड बी अ प्रोग्राम, आई विश आई कुड डू दैट इन फ्यूचर, कि जो इमाम साहब है उनको हम बता सकें कि देयर इज एंजाइटी, देयर इज डिप्रेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ, देयर इज सेल्फ हार्म ड्यू टू इमोशनल पेन, और लोग उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. अगर हम ये अवेयरनेस बता पाए तो वो जो अवेयरनेस मेंटल हेल्थ उन लोगों को पहुंचा सकते हैं हर नमाज के बाद, शायद एक सेंटेंस, शायद एक लाइन, तो हम मेंटल हेल्थ जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं. कोलैबोरेशन विद मॉस्क इमाम, यस ऐसा हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ग्राउंड लेवल का स्टेप है. ठीक है, तो आपने इसको राइट पर्सन के पास जरूर रेफर करना है. कोई ऐसा बंदा
जरूर निकाल लें जो कि डायरेक्टली उसके साथ इन लूप हो और उसको कांटेक्ट कर सके, उससे बात कर सके। फिर नंबर 6 फॉलो अप, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक लूप में रहना है कि फिर से तो नहीं वो इंसान सुसाइडल जो है अटेम्प्ट कर रहा, सही है, फिर से तो नहीं उसको थॉट आ रही, फिर से तो नहीं वो किसी चीज से सफर कर रहा। सो दीज आर 6 स्टेप, आस्क, लिसन, रिमूव, स्टे, कॉल एंड फॉलो अप। ये 6 काम आपने करने हैं उस इंसान के साथ जो आपने इससे पहले मैंने बोला अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से स्क्रूटनाइज किया है। Okay, if you could say one sentence to someone who is struggling silently today, तो आप उसको क्या sentence बोलेंगे? Let's take 1 minute and write that sentence. In our mosque, women go to for the Friday prayer, so I think it's possible. Yes, सुंबल possible हो सकता है, ये बहुत ग्राउंड लेवल की चीज है और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो बात जो हम आपको मैं बताऊं मजे की बात, अच्छा तब तक जब आप ये लिख रहे हो मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। इफ द फैमिलीज कम टू मी व्हेन एट क्लिनिक, तो अगर उनको बताया जाता है और उनकी फैमिली को बताया जाता है कि यू हैव टू बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड देम इन दिस सिचुएशन, तो दे से कि आप अ फीमेल केम टू मी एंड सेड पंजाबी में कि तू तो मेरी तीदा दिमाग खराब कर देता है, ये इसने तो कभी सारी जिंदगी मेरे सामने कभी पलट के लफ्ज नहीं बोला था, तो ये तो बोलना शुरू हो गई, तुमने तो इसको जुबान लगा दी है। तो व्हेन इन पाकिस्तानी डिसफंक्शनल फैमिली आप अपनी बाउंड्री और आप अपनी जो है बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड यू से समथिंग आउट लाउड, तो ये आपके साथ होता है, इवन ये थेरेपिस्ट के साथ होता है। अच्छा, my world wouldn't be the same without you, you know. I'm very glad we met. Thank you so much for writing this, Zoya. I love this line. You can say this to your loved one. You're not alone. Share it with me. I will not give you I will give you a productive solution. No, don't say कि मैं solution दूंगी। Probably आपके पास या किसी के पास कुछ ऐसे life की situations होती हैं जहाँ पे हम solution नहीं निकाल सकते। You have to be, मैंने पहले बोला है, आपने, मैंने ये नहीं बोला आपने सोल्यूशन निकाल के देना उस बंदे को, आप चीजों का अक्सर चीजों का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपने सुनना है और वैलिडेट करना है कि द थिंग यू आर फीलिंग इज राइट, तुम सही फील कर रहे हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जस्ट रिमेंबर आई एम ऑलवेज देयर, वेरी लवली, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन, डोंट बी सैड। ओके, ये सेंटेंस अगेन मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगी कि एक इंसान को खुद भी पता है कि मुझे उदास नहीं होना है, मैं उदास होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो फिर मैं इस पॉइंट पे, इस वर्ज पे जाता हूँ कि मैं कोई एक्सट्रीम स्टेप जो है वो रुमिनेट करना शुरू कर देता हूँ। डोंट बी सैड मत बोलो, उसको बोला आई एम हियर, सही है। एक मैंने बहुत अच्छी बात एक जगह पढ़ी कि आप जो है अगर बारिश हो रही है, आप किसी के लिए बारिश रोक नहीं सकते तो उसके साथ एटलीस्ट बारिश में बैठ सकते, तो सिट विद दैट पर्सन, विद दैट फीलिंग, और इसको लगेगा कि शायद मेरी आधी मुश्किल तो आसान हो ही गई है। लाइफ इज हार्ड, आई नो, एंड आई एम हियर टू लिसन टू योर फीलिंग। यू गाइस आर सो लवली, ब्यूटीफुल पीपल। Why not play for a while or have a cup of tea? अब आप ये देखें कि ये आपने लास्ट टाइम कब किसी को कहा है, अब कब आपने ये बात, इतनी प्यारी प्यारी सी बातें जो आप मुझे कमेंट में बता रहे हैं, आपने कब लास्ट टाइम अपने किसी अच्छे दोस्त को, किसी भी इंसान को कही है? आपने नहीं कही होंगी, 70-80% लोगों ने नहीं कही होंगी, तो आज आपने उस बंदे को ये बात कहनी है। Social support can improve resilience. I say it often. That's great. You are beautiful people. Okay, take a screenshot of it. सही है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यू कैन इजीली सर्च देम ऑन गूगल। शेयर दीज ऑन योर स्टेटस टुडे एज वेल कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, टीन थेरेपी वेलनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ लेड है एंड इट इज लेड बाय अफ्रा स्पेसिफिकली, so you can reach out for low cost mental health services, at least seek help, और वो उस इंसान के लिए आप हेल्प सीख कर सकते हैं और उसको इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाउस ऑफ वेलनेस, हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, फातिमा होप साइकोलॉजिकल सर्विस, थेरेपीज एंड माइंड ऑर्गेनाइजेशन, सेहत कहानी, पहचान, मरहम, मेरी सेहत, ओला डॉक, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मौजूद है, डिफरेंट कॉस्ट है जिनकी, और उनके ऊपर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन सीक दैट मेंटल हेल्थ हेल्प। ओके, हाउ वी कैन हेल्प प्रिवेंटिंग सुसाइड एज अ कम्युनिटी। पहली बात, जैसे आज हमने बहुत खुलकर, बहुत नॉर्मल
आम वर्ड में नॉर्मलाइज किया है मेंटल हेल्थ टॉक को, वैसी टॉक हमें अपने घर पे करनी पड़ेगी, वैसी टॉक हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड ग्रुप में करनी पड़ेगी, अपने क्लासमेट्स में करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं ना, सपोर्ट ग्रुप का क्या मकसद होता है? सपोर्ट ग्रुप का मकसद होता है पीपल सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सब बैठते हैं, सब एक कंपैशनेट, एक कम्युनिटी लेवल पे बैठ के टॉक करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं कि अच्छा मैं इस चीज से सफर किया, तुमने इस चीज से सफर किया, दे टॉक अबाउट इट। सही है। तो हमने जब स्टार्ट पे बात की शेम बेस्ड कल्चर की, तो हमें तो ये कहना अलाउड नहीं है कि मैं उदास महसूस कर रही हूँ, ठीक है, आगे से पिटाई होती है। सो नॉर्मलाइज सबसे पहले करना है कन्वर्सेशन को। चेक इन ऑन योर साइलेंट फ्रेंड्स, चेक इन, प्लीज डू दिस टुडे, कि आज आपने अपने उन साइलेंट दोस्तों से बात करनी है, उनको मैसेज करना है अपनी तरफ से। हाय, हम कहते हैं उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों हालचाल पूछूं, ठीक है। अपने कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, जो आपको लगता है किसी चीज से पहले सफर कर रहा था, उसने कभी आपको बताया था जिंदगी में, आज आपने उस साइलेंट फ्रेंड को मैसेज करना है। शेयर हेल्पलाइन, शेयर पोस्टर्स ऑन सोशल मीडिया। आज जो हमने कुछ चीजें देखी, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया, शेयर दिस ऑन योर सोशल मीडिया। मिथ्स को करेक्ट करें, जो हमने आज मिथ्स भी डिस्कस की, वो सारी की सारी आप सिर्फ मिथ एंड फैक्ट लिखकर एक भी शेयर कर देंगे तो आप अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, कंट्रीब्यूट करें। फेथ लीडर्स, जैसे मैंने बताया कि फेथ लीडर्स, इमाम जो रोल प्ले कर सकते हैं, मौलवी साहब जो रोल प्ले कर सकते हैं, वो कोई दूसरा इंसान प्ले नहीं कर सकता। फेथ लीडर्स का अपना एक रोल है, इंस्टीट्यूशंस का अपना एक रोल है, अवेयरनेस वॉक्स होनी चाहिए और कन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए। एंड प्रिवेंशन इज एवरीवन्स जॉब। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का काम नहीं है, साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, प्रिवेंशन हर इंसान का काम है और हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। Okay, now moving forward, and we are about to end our webinar as well. So एक छोटी सी एक्टिविटी करें, जार ऑफ होप। आपने इस जार में एक वर्ड डालना है, तो एक प्यारा सा वर्ड, जैसे आपने पहले बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बोली, हर बंदा यहाँ पे एक काइंड वर्ड इसमें डालेगा that would help that person who is suffering from something, और हम उस इंसान के लिए जार बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप सब अपना एक प्यारा प्यारा वर्ड ऐड करें, एक काइंड वर्ड ऐड करें उस इंसान के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है। यू आर अमेजिंग, यू कैन डू एनीथिंग, ब्यूटीफुल, तूबा, यू आर नॉट अलोन, okay, you can achieve anything, I am proud of you, superb, you are deserving, you are loved, life is not easy but we made it, you have kind heart, you are strong, you are brave, Laiba. Thank you so much, Afra, you are beautiful, Allah is the best planner, love you, life is too beautiful, don't overthink it, okay। अच्छा, सब उनको पता है कि वो ओवरथिंक कर रहे हैं, हमको ये मत बोले ओवरथिंक ना करें, उनको बोले आई एम हियर आपकी ओवरथिंकिंग सुनने के लिए, ठीक है। इकरा, healing is within you, you are special to me, you are special more than anything, you can do it, you are my sunshine, Allah has created everyone unique and with purpose, discover your unique friend to self, you are important, thank you so much, Allah is blessing, you are unique, you guys are so beautiful। अब आप सबने एक काम करना है, आप सबने ये सारी चैट का स्क्रीनशॉट लेना है, ये बन गई आपकी बहुत प्यारी प्यारी सेल्फ एफर्मेशंस, खुद भी पढ़नी है, ये सारों की एक लिस्ट बनानी है और ये भी आपने अपने स्टेटस पे किसी दिन लगा देनी है और सबको अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ये रेडिएट करनी है, ये होप, ये ब्यूटी, ये काइंडनेस, ये उन तक पहुंचानी है। इवन आई एम फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल ये सब कुछ पढ़ के। Mashallah, very sweet, you are important, you are valuable, stay blessed, it will get better, health is a green growing garden, सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम ठीक कर सकती हो, resilience, hope for the best, you're kind ma'am, thank you so much, you are so unique, you all are so beautiful। सही है, ये आप सब ये बात कह सकते हैं, इसका मतलब ये बात आपके माइंड में है, and you can if you can make me feel good, you can make anyone feel good। I felt great after reading this even। ठीक है, तो ये सब चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद अपनी सारे सेंटेंसेस अपने नोट में लिखने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में अपलोड कर देना, ठीक है। इट विल मेक समवन्स डे, इट विल मेक समवन्स डे, ओके। एवरी वर्ड शेयर टुडे इज अ रिमाइंडर दैट साइलेंस डजंट हैव टू विन। हम उसको हरा सकते हैं, हम उसे एक इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं और उसके लिए सिर्फ आपका एक अच्छा इंसान होना, एक काइंड इंसान होना जरूरी है। आपका कोई थेरेपिस्ट होना, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है।
आपका सिर्फ इंसान होना जरूरी है। आप सिर्फ एक बंदे की बात सुन लेंगे तो वो उसकी जिंदगी में बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगी। आई विल एंड दिस कन्वर्सेशन विद अ ब्यूटीफुल नोट, एंड दैट इज खुद ब खुद तो झाड़ियां उगती हैं, बाग तो लगाने पड़ते हैं, और वो बाग कौन लगाएगा? वो बाग आप लगाएंगे, वो बाग मैं लगाऊंगी, हम सब मिलकर लगाएंगे। और वो बाग क्या है? एक एक पौधा है अपने अपने हिस्से का। किसी की जिंदगी में अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं, और उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप किसी के दिए में थोड़ी सी जो है थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और वो इंसान थोड़ा अच्छा फील करेगा। टू ऑल द पीपल जो मुझे सुन रहे हैं, और प्रोबेबली जो है उन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया है और वो किसी चीज से स्ट्रगल करे, इफ यू आर स्ट्रगलिंग, प्लीज रिमेंबर योर लाइफ मैटर्स, you are not alone, and help is always possible. Sometimes just holding on is a brave step, and you are doing that. And if you can be someone's reason to stay, be that light for someone. Okay, thank you so much. And today we ट्राइड कि हम अवेयरनेस रेज कर सकें, हम कन्वर्सेशन कर सकें, और हम अर्ली इंटरवेंशन को प्रमोट कर सकें। आई होप आई वाज सक्सेसफुल। एटलीस्ट आप 60 लोगों में से 70 तकरीबन लोगों ने ज्वाइन किया था। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, कुछ लोग जो है सेल्फ अवेयर हो पाए होंगे, कुछ लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे चीजों को। एंड प्लीज अपने तक नहीं रखना है, उस दिए में तेल डालना है। और वो आपके पास डिजिटल, आज हम पाकिस्तान में कहाँ से आप सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होगा, हम अगर यहाँ बैठकर ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो हम अपने हिस्से का एक दिया जला रहे हैं ना। तो आप सब लोगों का हिस्सा ये होगा कि आज आपने अपना अपना स्टेटस अपडेट करना है, और अपने उस साइलेंट फ्रेंड को जरूर हाइप करना है, मैसेज करना है। ओके, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, दैट्स ग्रेट। Please follow and share Team Therapy Wellness and Ma'am Live on LinkedIn. Thank you so much, Zaya. Yes, I added Team Therapy Wellness and Healing with Laiba. I'm on Instagram as well, and you can search me on LinkedIn as well. You have to follow both pages. And thank you so much. It was beautiful conversation today. Allah Hafiz. Bye bye. I loved it. I hope you loved Thank you so much, Laiba. it. I would like to thank you personally. This was such an informative, such a great session. Thank you for your time. Thank you for sharing your knowledge with us. I understand this was a very sensitive topic, and I believed that you were the perfect speaker, the perfect person who could talk about this thing with such compassion, with such empathy. And I understand that it definitely takes strength to talk about something that is so heavy. And I actually want, after this session, maybe go out for a walk, have some glasses of water, make a cup of coffee for yourself, have some fresh air, and relax yourself, because I understand that when you're talking about such things, sometimes aap khud bhi bahut zyada overwhelmed feel karte ho. And on that note, I want all of you to do this one quick exercise with me, because I know कि आज का session काफी sensitive था, और maybe कुछ लोग इस time पे शायद थोड़ा stressed out feel कर रहे हो, या कुछ चीजें उनके mind में आ रही हो। अब obviously we cannot have one-on-one session with each one of you. So I just want all of you to relax yourself, sit wherever you are sitting, make sure that you're comfortable, and both your hands hold your shoulders like this. Make a butterfly of yourself and hug yourself. ठीक है? और अपने आप को जितना tightly आप hug कर सकते हैं ना, you do that for maybe for 30 seconds or for 20 seconds. And Miss Laiba, अगर आप भी हमारे साथ ये छोटी सी exercise कर सकती हैं, तो it would mean a lot, because this is something that we all need to do for ourselves. We all need to first of all hug ourselves, love ourselves, because जब तक हम mentally or physically stable or strong नहीं होंगे, we cannot help someone else, we cannot heal someone else. So it's very important कि पहले आप खुद को heal करें, खुद की mental health को देखें, and then you provide help to other people. All right. On that note, I also want to add this one more myth that I wanted to talk about today. That is कि काफी लोगों को लगता है कि सुसाइड या सुसाइडल थॉट सिर्फ उन लोगों को आती है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट, ये सिर्फ एक ऐसी वाहिद सोच है जिसकी वजह से काफी लोगों के जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, वो नजरअंदाज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम अल्लाह ताला के करीब नहीं हो,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाजी भी हैं, रोजे भी रखते हैं, अल्लाह ताला को याद भी रखते हैं, लेकिन उनके भी जहन में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, वो भी इन चीजों का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा, अब्यूज, डिप्रेशन, इमोशनल पेन, ये सब रियल है। ठीक है, ये इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड का नाम या सुसाइड को ईमान की कमजोरी का नाम कह दिया कि तुम्हारी ईमान, तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारा ईमान कमजोर है, इससे तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। और ये बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और यही वजह जिसकी वजह से लोग शर्मिंदा हैं इस बारे में बात करने से, वो बदनामी से डरते हैं, घर वालों से बात नहीं करते कि वो तो बस यही कहेंगे तुम नमाज नहीं पढ़ती हो इससे तुम्हें इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। नमाजें, कुरान, रोजा, ये सब आपके अपने लिए, इसको जरूर करें, लेकिन अगर फिर भी आपको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनकी बात को समझें, उनको जज ना करें। देयर इज वन पर्सन हु सेड कि आप अगला सेशन इस पे भी रखें कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि जो भी शख्स जिसने अपनी जिंदगी में जीने की हिम्मत हार दी है, जो गिव अप कर चुका है, उसको आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है, उसको ना आपकी एडवाइजेस चाहिए, उसको ना आपने कहानियां सुनानी है, उसको सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। कभी कभार sometimes when you just hold someone's hand, that's enough to you can save their life as well. It's important to remind ourselves that we don't always need to fix people. हमें हर वक्त हर मसले का सलूशन या हर वक्त उनको एडवाइस या नसीहत नहीं देनी होती है। कभी कभार सिर्फ हमारा उनके साथ मौजूद होना, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एडवाइसेस और मशवरे, that's the greatest form of healing that we can offer to them. And that's all that I would like to say. I'm so thankful to each one of you. I'm going to open the WhatsApp group as well. Please अपना feedback share करें, कोई questions हैं जो पूछने हैं, you can always ask that. And Miss Laiba, do you want to say something? Yes, I want to add one thing. अफ्रा आपने बिल्कुल ठीक कहा. I want to add कि मैं a while back I was teaching to psychology student, first year or second year psychology, because arts के student पढ़ते हैं. And there is in chapter 2 उन्होंने लिखा हुआ है एक religious perspective में कि खुदा से दूरी नफ्सियाती बीमारी की वजह है. So I pointed that out. किताब के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है. एंड आई एजुकेटेड होल क्लास ऑन दैट एज वेल कि दिस इज वेरी रॉन्ग. 2006 की वो बुक है, दैट नीड टू बी अपडेटेड. एंड कोई प्लीज पिटिशन ऐड कर दे उसके बारे में भी, दैट इज बैड. तो ये चीज बुक के अंदर मेंशन है. जब हम अपनी किताबों में ये चीज रिव्यू नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो लोगों के ज़हन में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Laiba. It was a very wonderful, informative session. I want all of you to deep breathing kare, have some glass of water and relax yourself. I will see you soon, inshallah, on Sunday. We are going to have a next workshop on Sunday at 3 p.m. And stay tuned for more upcoming great workshops and more opportunities to engage with our speakers. Thank you so much. Allah Hafiz.